Now, components of vector. In order to be more precise about the direction of a vector, we can represent a vector as a linear combination of basis vectors. अब ये basis vectors क्या होते हैं पहले ये समझेंगे. Basis vectors यानी unit vectors along positive x-axis, positive y-axis and positive z-axis. That means this is I cap, ये j cap, ये k cap. इनको बोलते हैं basis vectors. Take the points A 1 0 0. अब इसमें y और z coordinates 0 है. तो ये पॉइंट ए कहाँ लाया करेगा? ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. ये देखो पॉइंट ए 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो 1 0 0. बी 0 1 0. ये पॉइंट कहाँ लाया होगा? ऑन द वाई एक्सिस. वेरी गुड. एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से 1 यूनिट, ये डिस्टेंस ये हो गया 0 1 0. तो it is unit vector, we represent it as j cap. C001 कहाँ पे लाया होगा? On the z axis. Very good. At a distance of 1 unit from the origin. तो ये हो गया k cap हो गया. OC बार जो रहेगा वो k cap रहेगा. On the x axis, y axis and z axis respectively. Then mod of OA bar is equal to mod of OB bar is equal to mod of OC bar is equal to 1. The vectors OA bar, OB bar, OC bar, each having magnitude 1, are called unit vectors along the axis x, y and z respectively. These vectors are denoted by I cap, j cap, k cap respectively. Yani vector OA bar will be I cap, vector OB bar will be j cap, vector OC bar will be k cap. Because I cap is a unit vector along the x-axis, j cap is a unit vector along y-axis, k cap is a unit vector along z-axis. And also called as I cap, j cap, k cap respectively, and also called as standard basis vectors or standard unit vectors. किसको बोलते हैं basis vectors? I cap, j cap, k cap. उनको क्या बोलते हैं? Standard unit vector. Because there may be a vector यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, बट ये डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज बेसिस वेक्टर और स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर. बिकॉज वो इट शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ओनली. ऐसा तिरछा तिरछा वेक्टर जो आएगा यूनिट वेक्टर, वो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर नहीं माना जाएगा. ओके, आई थिंक कंसेप्ट्स आर क्लियर. Any vector along x-axis is a scalar multiple of unit vector I cap. आपको x-axis पे का वेक्टर चाहिए of magnitude 3, तो 3 I cap हो जाएगा वो. तो 3 I cap is a vector along this direction. Along y-axis is a scalar multiple of j cap, and along z-axis is a scalar multiple of k cap. Okay? So k cap की आपको एक हाथ magnitude 4 वाला चाहिए, तो ये unit vector 4 times k cap यानी यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर रहेगा वो. ये 3 I cap रहेगा, ये 4 k cap रहेगा, and just like that. Now we will see the collinearity property. Example 3 I cap. 3 I cap. I cap कहाँ से कहाँ तक है? O से A तक 1 0 0. तो 3 I cap कहाँ होगा? Is a vector along OX with magnitude 3. यानी यहाँ पे कहीं भी पॉइंट आएगा वो उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 3, 0, 0. 5 j cap is a vector along OY. 5 j cap is a vector along OY. OY पे रहेगा यहाँ तक, यहाँ कहीं तो भी यहाँ से 5 j cap आएगा. 5 j cap यहाँ से यहाँ तक. 4 k cap is a vector along OZ with magnitude 4. 4 k cap कहाँ रहेगा? ये k cap है. 4 k cap यहाँ से यहाँ तक रहेगा. 4 times this distance. ये डिस्टेंस जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में, दैट विल बी 4 k cap हैविंग मैग्नीट्यूड 4. इसलिए यहाँ जो टर्मिनल पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 0, 0, 4. वेरी गुड. 0 0 4 रहेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स. आई थिंक एवरी कंसेप्ट इज क्लियर. एक बार मैं रिपीट करता हूँ. 3 I cap is a vector along OX with magnitude 3. 5 j cap is a vector along OY with magnitude 5. 4 k cap is a vector along OZ with magnitude 4. That's all, my friends.
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर नॉर्मली 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में ये थ्योरम पूछते हैं। थ्योरम 4 क्या है? इफ ए बार बी बार सी बार आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो वो डिटरमाइन अ स्पेस वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर आर बार इन द स्पेस can be uniquely expressed as a linear combination of a bar, b bar and c bar। यानी क्या प्रूव करना है अपने को? r बार इक्वल टू x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा इसमें? यूनिकनेस, ये भूलना नहीं है। अब इसकी थियरी कैसे याद रखना? इतना बड़ा 4 मार्क का थियरम है तो याद कैसे रखना? आपको इसमें एक पैरेलल पाइप निकालना है, 2 पैराग्राफ्स निकालो ऐसे, उनको ऐड कर दो, उसकी लाइंस ऐसी ज्वाइन कर दो, और उसका ये जो आ रहा वो आपकी तरफ आ रहा वो ए बार वेक्टर बोलो, इधर जो जा रहा बी बार है, ऊपर जो जा रहा सी बार है। ओके, अब टेक ए एज द इनिशियल पॉइंट एंड पी इज एनी पॉइंट इन द स्पेस। अब ए पी बार बिकम्स आर बार, जो मुझे चाहिए ना। थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ तो आपको पता चलेगा बी बार और सी बार वेक्टर्स है, व्हाइट बोर्ड में है, यानी प्लेन ए क्यू आर एस जो प्लेन है वो व्हाइट बोर्ड के अंदर है, और ये पॉइंट पे ऐसा बाहर निकल रहा, यहां ए है और पॉइंट पे ऐसा बाहर निकल रहा, यानी वहां दिख रहा। तो ये जो प्लेन रहेगा इस तरह से बी सी पी टी प्लेन है, ध्यान से देखो, बी सी पी टी प्लेन, करेक्ट है? तो ऐसा बाहर निकल रहा प्लेन। अब 3D आपको इमेजिन होगा, यानी ये अंदर का पॉइंट है ए, और यहां से पॉइंट पी यानी पंखा जो दिख रहा है अपने को वो पॉइंट पी रहेगा, ए से पी, ए पी बार इज आर बार। तो पी से एक पैरेलल प्लेन निकाला बी सी पी टी, इतना याद रखना है अपने को, बाहर निकल रहा। नाउ यू इमेजिन ये बी सी पी टी प्लेन व्हाइट बोर्ड के बाहर आपकी तरफ आ रहा है। व्हाइट बोर्ड में कौन सा प्लेन है? टेल मी। ए क्यू आर एस, ये प्लेन व्हाइट बोर्ड में जिसने किसने बनाया? व्हाइट बोर्ड जिसने बनाया बी बार और सी बार वेक्टर्स ने मिलके बनाया व्हाइट बोर्ड का प्लेन, जो है अंदर में पी ए क्यू आर एस, और बी सी पी टी प्लेन का ऐसा बाहर निकला हुआ है, ऐसा बाहर निकल के ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये बी सी पी टी प्लेन है, और व्हाइट बोर्ड पे जो प्लेन है ए क्यू आर एस। इमेजिन कर लिया सबने। अब लेट ए बी प्रूफ चालू करते हैं। शुरुआत कहां से करना? ओरिजिन से ए। लेट ए बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, टेक द वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार एंड आर बार सो दैट ए बिकम्स देयर इनिशियल पॉइंट। देखो, ए बार बी बार सी बार आर बार, हर एक में ए कौन है? इनिशियल पॉइंट। अब आई रिपीट, शुरुआत कैसी रहेगी? टेक ए, लेट ए बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, टेक द वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड आर बार सो दैट ए बिकम्स देयर इनिशियल पॉइंट। यानी शुरुआत थ्योरम की याद होगी, प्रूफ की शुरुआत ए बी सी डी का ए से चालू करना। लेट ए बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, take the vectors a bar b bar c bar and r bar so that a becomes their initial point। हो गया। let a p bar is equal to r bar, उसके बाद पहले ये a से लेके पंखा का p, दैट पंखा जो दिख रहा है ना आपको, वो पंखे का p, a p bar is r bar। as a bar b bar c bar are non coplanar vectors, they determine 3 distinct planes, एक ए बी बार, एक बी सी बार और एक सी ए बार। 3 डिस्टिंक्ट प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। उसमें सिर्फ एक प्लेन के बारे में बात करेंगे जो बाहर में आके दिख रहा है अपने को। थ्रू द पॉइंट पी ड्रॉ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर्स बी बार एंड सी बार। अब बी बार और सी बार ने कौन सा प्लेन बनाया? बी बार और सी बार ने ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन बनाया, उसको पैरेलल प्लेन और थ्रू पॉइंट पी, यानी ये व्हाइट बोर्ड को पैरेलल प्लेन थ्रू द पॉइंट पी कौन सा रहेगा? बी सी पी टी, करेक्ट है? तो हो गया बी सी पी टी प्लेन हो गया। सो दिस इज बी सी पी टी बाहर आ रहा है। अब ये बी सी पी टी प्लेन ए बार को कहां इंटरसेक्ट कर रहा? कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट बी।
दिस प्लेन BCPT इंटरसेक्ट्स द वेक्टर A बार एट पॉइंट B। हो गया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। लेट AP बार इज इक्वल टू R बार एज A बार B बार C बार आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दे डिटरमाइन 3 प्लेन्स। कौन से 3 प्लेन्स रहेंगे? एक AB बार का प्लेन रहेगा, A बार और B बार का प्लेन यानी ये प्लेन रहेगा A बार B बार का, एक B बार और C बार का यानी व्हाइट बोर्ड का प्लेन, और एक A बार और C बार का प्लेन रहेगा। 3 डिस्टिंक्ट प्लेन्स intersecting at the point A. Through the point P, draw the plane. Through the point P, draw the plane which is parallel to the plane formed by the vectors B bar and C bar. यानी व्हाइट बोर्ड को पैरेलल अपन ने प्लेन निकाला through the point P. वो प्लेन को रहेगा B C P T. This plane intersects the line containing A bar. ये देखो, this plane intersects the line containing A bar at the point B. Similarly, draw the other planes and complete the parallelopipe पे complete करने का। हो गया? बस ये लैंग्वेज आपको बहुत याद रखना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में। उसके बाद सिंपल अपने उस दिन का कंसेप्ट क्या था? लाइट कैमरा एक्शन जूम, लाइट कैमरा एक्शन जूम, लाइट कैमरा एक्शन जूम। किधर? ये लाइन पे। ये लाइन पे आपको क्या क्या दिख रहा है? एक वेक्टर दिख रहा है AB बार, और ये A से दूर तक ये दिख रहा स्मॉल a बार। अब ये AB बार और A बार कैसे वेक्टर्स है? एक लाइन में, यानी कैसे? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कोलिनियर वेक्टर्स है। नाउ AB बार एंड स्मॉल a बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। Therefore, AB bar can be expressed as a scalar multiple of small a bar, and therefore AB bar is equal to XA bar, where X is a scalar, real number. Similarly, और कौन से दो वेक्टर्स आपको अभी ये हो गया x एक्सिस, now go to y एक्सिस। यहाँ कौन दिख रहा है आपको? सही है, बोलो जोर से बोलो। AQ bar and B bar are collinear. Therefore, AQ bar can be expressed as a scalar multiple of B bar. Therefore, AQ bar is equal to YB bar. अब Z एक्सिस पे आओ। Z एक्सिस पे कौन कोलिनियर दिख रहा है आपको? AS bar and very good, AS bar and C bar are collinear vectors. एक लाइन में है वो collinear vectors. Therefore, AS bar can be expressed as a scalar multiple of C bar. Therefore, AS bar is equal to Z C bar, where Y and Z are scalars. Y and Z are scalars. जम गया? ये लैंग्वेज भी जम गई। सो पहले ये लैंग्वेज पैरेललोपाइप ड्रॉ करने तक की लैंग्वेज याद रखना। उसके बाद सिंपल है, उसके बाद लाइट कैमरा एक्शन जूम। क्या दिख रहा है? AB बार एंड A बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, देयरफॉर AB बार इक्वल टू XA बार। सिमिलरली AQ बार इज इक्वल टू YB बार एंड AS बार इज इक्वल टू YC बार, ZC बार, सॉरी, AS बार इज इक्वल टू ZC बार। हो गया तीनों? उसके बाद आपको क्या चाहिए? R बार कैन बी एक्सप्रेस। तो R बार कौन सा वेक्टर है? पॉइंट A से लेके पॉइंट P तक, करेक्ट है? अब A से P कैसे जाऊंगा? पहले A से C जाऊंगा और C to P बाय विच लॉ? ट्रायंगल लॉ। सो नाउ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स AP बार इज इक्वल टू AC बार प्लस CP बार। आई रिपीट, AP बार इज इक्वल टू AC बार प्लस CP बार। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ACP। अब A to C जाने का भी एक रास्ता है। हाउ विल आई गो फ्रॉम A to C? आई विल गो फ्रॉम A to B एंड B to C। तो दिस R बार इक्वल टू AP बार, यानी कौन है? R बार इक्वल टू AB बार प्लस BC बार। AB बार प्लस BC बार क्या मिलेगा मेरे को? AC बार। तो इंस्टेड ऑफ AC बार आई एम राइटिंग AB बार प्लस BC बार प्लस CP बार इन ट्रायंगल ABC। ओके, अब ये AB बार काम का, उसके लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर घटना बताऊंगा, सत्य घटना पे आधारित एक स्टोरी बताऊंगा। ये BC बार को कैसे पहचानना आपको बताता हूं। 14 एंड 15 जनवरी 2020 हमारे मित्र है, वहाँ उनके रिलेटिव्स रहते हैं। उन्होंने बोला हमारे बात बहुत पतंग उड़ती है, देखने में मज़ा आता है, काइट फ्लायर। चले गए अहमदाबाद पतंग उड़ाने के लिए, और वहाँ रियली अपन नागपुर वाले इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी पतंग उड़ती, इतनी कि पता ही चलता कौन सी पतंग कहाँ है। तो सो नागपुर वाले जैसे दूर पतंग रख के ढील से पीछे लेते अपन लोग, उतने में पीछे से एक पतंग कट के आ गई। ओके, मेरी पतंग मेरे हाथ में,
कट के आ गई तो उसका मतलब मैंने पकड़ लिया, अपने इस पे नहीं आना चाहिए करके, तो अब मेरे हाथ में 2 पतंग हो गई, 2 kites I was having। सडनली देखा कि 3rd काइट भी आ गई, अपने धग्गे पे आ रही है, तो मैंने एक हाथ से और उसको भी पकड़ लिया। अब मेरे ये हाथ में 2 काइट और ये हाथ में 1 काइट, तीनों काइट मेरे हाथ में थी। तो मैंने अपने दोस्त जो थे, उनके रिलेटिव्स थे, उनको बुलाया और वो 2 पतंग उनके हाथ में दे दी। तो जब तक वो पतंग मेरे हाथ में थी वो मेरी थी, जैसे अगर मैं नहीं पकड़ता तो किसी और की हो जाती थी, करेक्ट है। वो कंसेप्ट अपन यहाँ लाएंगे। ये मैं हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट, पतंग उड़ा रहा हूँ, मेरी पतंग मेरे हाथ में है। एक भी बार 2 पतंग कट के आ गई सडनली, AQ बार और AS बार। अब तीनों की डोर AB बार, AS, Q बार और AS बार की मेरे हाथ में, करेक्ट है। वो मेरी पतंग है, मेरी काइट्स है। वही आपको याद रखना है एग्जाम में कि सभी पतंगों की डोर, काइट की डोर अपने हाथ में रखना है, यानी ए के पास होना चाहिए। अब देखो AB बार की डोर मेरे हाथ में है, ये अच्छा है, मेरी काइट है। BC बार की डोर मेरे हाथ में है क्या? नहीं है। तो ऐसा कोई वेक्टर है क्या कि जो A से निकलता है और BC के बराबर आएगा? Since it is a parallelepiped, this is a parallelogram, length BC is equal to length AQ and BC is parallel to AQ. That means I can replace BC bar by AQ bar, यानी इसकी डोर भी मेरे हाथ में अब आ गई है, पहले नहीं थी, अब मेरे हाथ में आ गई। तो BC बार की जगह मैं क्या लिखूंगा? BC बार की जगह क्या लिखूंगा? AQ बार, क्योंकि ये BC बार है और ये AQ बार है। अब देखो 3rd पतंग अभी उड़ रही है, CP बार, मेरे हाथ में उसकी डोर नहीं है, उसका पेचा किसी और के साथ हो गया हुआ है, वो कट के आ गई, मेरे हाथ में आ गई, मेरे हाथ में आ गई, तो यहाँ पे आ गई, उसके एक डोर मेरे हाथ में आ गई अभी। तो ये कौन हो गया? AS बार, क्योंकि लेंथ CP विल बी इक्वल टू लेंथ S and direction of CP is parallel to S. So these two vectors are equal. अब तीनों पतंग की डोर मेरे हाथ में है, AB बार, AQ बार एंड AS बार। That means I can replace CP बार by AS बार। ये कंसेप्ट में और एक बार रिपीट करता हूँ। AB बार तो उसकी डोर मेरे हाथ में है तो अच्छा है, मेरी काइट, इट्स माय काइट। BC बार की डोर मेरे हाथ में नहीं है, उसका धागा मेरे हाथ में नहीं है, तो BC बार को रिप्लेस किया मैंने AQ बार से, सेम है, BC बार इज रिप्लेस बाय AQ बार। CP बार की डोर मेरे हाथ में धागा उसका नहीं है, उसको रिप्लेस किया मैंने AS बार से, AS बार, बिकॉज BC बार इज इक्वल टू AQ बार एंड CP बार इज इक्वल टू AS बार। ये स्टोरी समझ गए, हर एक को भी याद रहेगा एग्जाम में। तीनों पतंग की डोर अपने हाथ में चाहिए, यानी कहां से चलना चाहिए, उसका इनिशियल पॉइंट तीनों का A होना चाहिए, तीनों का इनिशियल पॉइंट A होना चाहिए। अब AB बार इज नथिंग बट XA बार, देखो AB बार इज नथिंग बट XA बार। व्हाट इज AQ बार? YB बार। AQ बार यानी कौन? YB बार। और AS बार यानी ZC बार। Therefore R bar is expressed as a linear combination of A bar, B bar and C bar। पहला पार्ट ट्रू हो गया। Now we'll go for uniqueness, वो आपको अच्छे से समझेगा। यहां तक सिर्फ 2 मार्क है, उसके बाद इसको 2 मार्क है, तो ये यूनिकनेस भूल गए आप लोग, तो आपके 2 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में गए। यूनिकनेस, सपोज R bar is equal to x1 A bar plus x2 B bar plus x3 C bar, equation 1 can also be written as R bar equal to y1 A bar plus y2 B bar plus y3 C bar। अब इन ऑर्डर टू प्रूव यूनिकनेस कब रहेगा? जब ऐसे 2 अलग अलग वेक्टर नहीं रहेंगे, R bar एक ही रहेगा, तो R bar एक कैसा होगा? x1 is equal to y1, x2 is equal to y2 and x3 is equal to y3। ये हमको प्रूव करना है, तो यहाँ उसके बाद लिखो इन ऑर्डर टू प्रूव यूनिकनेस वी हैव टू प्रूव दैट x1 is equal to y1, x2 is equal to y2 and x3 is equal to y3। ये अपने को प्रूव करना है। ओके, जैसे थ्योरम 2 में अपन ने किया था, थ्योरम 3 में किया था, वो चालू करेंगे अभी। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स 1 माइनस 2 गिव्स R bar माइनस R bar 0 बार। फुल्ली एग्री? R bar माइनस R bar 0 बार। यहाँ कॉमन कौन निकलता है? A बार, तो क्या बचेगा? x1 माइनस y1, क्योंकि अपन क्या करें? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो गया x1 माइनस y1 इंटू A बार प्लस x2 माइनस y2 इंटू B बार प्लस x3 माइनस y3 इंटू C बार।
हो गया, 1 माइनस 2 से मिल गया मेरे को। अब मैंने क्या किया, सी बार को यही रह लिया और इनको इधर लेके आया, तो x3 माइनस y3 इंटू सी बार विल बी इक्वल टू, अब ये इधर आने से क्या होगा, प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस इन ब्रैकेट x1 माइनस y1 इंटू ए बार, ये भी इधर आया, माइनस इन ब्रैकेट x2 माइनस y2 इंटू बी बार, इक्वेशन 3। नाउ नेचुरली मेरी इच्छा होगी आई शुड डिवाइड बाय x3 माइनस y3, बट जिससे डिवाइड करना है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट x3 नॉट इक्वल टू y3, let us assume that x3 not equal to y3, therefore x3 minus y3 not equal to 0। अगर ये 0 नहीं है, I can divide both sides by x3 minus y3, therefore divide equation 3 by x3 minus y3, तो c बार इक्वल टू माइनस ऑफ x1 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस y3 इंटू ए बार माइनस x2 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस y3 इंटू बी बार। अभी x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे आर ऑल स्केलर्स, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो c बार इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार हो गया। ऐसा लिख सकता हूं मैं, दैट इज c बार इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार, where t1 की वैल्यू क्या रहेगी, ये इतनी वैल्यू रहेगी, t2 की रहेगी माइनस इन ब्रैकेट x2 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस y3 रहेगी। व्हाट इज दिस, c बार इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार, व्हाट इज दिस, इट इज अ excellent, my talented students, excellent answer, this is a linear combination of a bar and b bar, therefore c bar is a linear combination of a bar and b bar। what does it mean, a bar b bar c bar are very good, therefore a bar b bar and c bar are coplanar vectors declared। बाप रे क्या अपने इन्वेंशन किया, a bar b bar and c bar coplanar vectors प्रूव करके दिखाया। गुरुजी ने बुलाया अपने को, सर ने इधर पड़ा कन्वर्ट में दिया है, डायरेक्ट ओखाड में एडमिट, इतने जोर से मारा। क्यों मारा, क्योंकि सर ने हमको दिया था ए बार एंड बी बार एंड सी बार आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दिया हुआ है, और अपन प्रूव क्या कर रहे हैं, दे आर कोप्लेनर। तो ये कैसे हुआ, बट दे आर गिवन टू बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। इसका मतलब अपन ने जो अज्यूम किया था x3 not equal to y3 must be wrong, hence our assumption that x3 not equal to y3 must be wrong, therefore x3 is equal to y3। Similarly we can prove that x1 is equal to y1 and x2 is equal to y2, this proves the uniqueness। That's all my friends।